Hello student, welcome back to the class. I hope you all are going good and I am also good. So let's start our new chapter today, and that is about verbs, kind of verbs. Mind opener, read the comparison and write the answers. Ria loves to dance. Every morning she practices her moves. She also sings while dancing. Her brother plays the guitar and they have fun together. After dancing, Ria helps her mother in the kitchen. She enjoys cooking. So what does Ria love to do? So Ria को क्या करना पसंद है? So Ria loves to dance. उसको डांस करना पसंद है, and that's how you will answer the rest of the question. Then we have, let's begin. A verb is a kind of words that tell us about an action or a state of possession. तो verb वो words होते हैं जो हमें action के बारे में बताते हैं या state of पोजीशन के बारे में बताते हैं. A verb tells what a person or thing does. verb हमें बताता है कि कोई person या thing क्या कर रहा है, what a person or thing is, और what a person or thing has. A verb denotes doing, being और possession. ठीक है, तो verb doing से, being से, यानी कोई क्या कर रहा है, being, possession से belong करते हैं. It is the main part of a sentence. Every sentence has verb. हर sentence में verb होती है, यानी कोई ना कोई action हो रहा होता है. Most of the verbs are action words. For example, bird fly in the sky. एक्शन वर्ड क्या है, फ्लाई है. ठीक है, आनंद इज़ वेरी हैप्पी इज़ व्हाट, बीइंग वर्ड. ठीक है, वर्ब टू शो बीइंग. देन सोनू हैज़ अ न्यू पेयर ऑफ शूज़, वर्ड टू शो पोजेशन. उसके पास एक नए पेयर ऑफ शूज़ हैं. ठीक है, तो ये पोजेशन दिखा रहा है. राजू नोज हाउ टू स्कोर अ गोल. ठीक है, तो नॉन एक्शन वर्ड वर्ब हो गया, तो ये क्या है, नॉन एक्शन वर्ब हो गया है. काइंड ऑफ वर्ब्स, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव एंड हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब. फर्स्ट, ट्रांजिटिव वर्ब, द वर्ब विच नीड्स अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग. ऐसे सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है. ठीक है, उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. फर्स्ट, अनिल प्लेज क्रिकेट. सीमा एंड रीमा सिंग अ सॉन्ग इन द पार्टी एंड माई फ्रेंड अडोर्स मी. ठीक है, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव. यहाँ पे सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है. Then the words play, sing and adores are transitive verb. They need an object to complete their meaning. तो यहाँ पे object की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि उनको अपना meaning complete करना है. They answer to the question what और whom. ठीक है, और ये किस तरह के question को answer करते हैं, what और whom, मतलब क्या और किसने किया. ठीक है. Then we have intransitive verb. The verb which does not need an object to complete its meaning is called an intransitive verb. ठीक है, तो जिनको किसी भी object की ज़रूरत नहीं होती है, it makes a good sense by itself, और फिर भी वो एक सही सेंटेंस बनाते हैं. लाइक रीना डांसेस वेल. ठीक है, अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. ठीक है, जैसे ऊपर वाले में था रीना सीमा एंड रीमा सेइंग अ सॉन्ग इन द पार्टी. पार्टी के लिए उन्होंने गाना गाया, तो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत थी. ठीक है, यहाँ पे रीना डांसेस वेल, और अच्छा डांस करते, तो प्रॉपर सेंटेंस भी है और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत भी नहीं है, तो इसी को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. ही हैज़ ग्रोन टॉल. The word dances and grown are intransitive verb. They do not need an object to complete their meaning. Then we have helping verb, auxiliary verb. The helping verb is also called auxiliary verb because it helps the main verb in a sentence. For example, Manoj was calling his brother for a movie. ठीक है, then the word calling is the main verb and word was is a helping verb or an auxiliary verb. Then remember auxiliary verbs. Be, इज़, एम आर, वॉज, वर, विल बी, शेल बी. ठीक है, बी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इज़, एम आर, वॉज, वर, विल बी, शेल बी. डू के लिए डू, डज, डिड, विल डू, शेल डू. हैव, हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शेल हैव. देन मॉडल्स, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, यूज टू, नीड एंड ought. Test time. Underline the verb and tell whether they are transitive or intransitive in the given sentence. We went to the market. हम मार्केट जाएंगे. ठीक है, हम मार्केट गए थे, तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन द वर्ब को अंडरलाइन करना है. वेंट इज व्हाट, द वर्ब हेयर. ठीक है, और ये भी बताना है ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कि कहाँ गए थे, मार्केट गए थे. ठीक है, सो ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब. Then we have choose the correct helping verb that are given in the brackets and fill the verb blanks. ठीक है, so I dash finished my work. I have, यहाँ पे सही हेल्पिंग वर्ब भरना है. आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क. ठीक है, आर नहीं आएगा, आर हम प्लूरल में लगाते हैं. देन वी हैव कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय एडिंग ऑब्जेक्ट. माई ब्रदर गॉट अ न्यू, यहाँ पे सही ऑब्जेक्ट लगेगा. माई ब्रदर गॉट अ न्यू ड्रेस. ठीक है, तो सही ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे फिल करना है. सेंटा क्लॉज गेव मी, सेंटा क्लॉज गेव गिफ्ट टू द चिल्ड्रन ऑन क्रिसमस. सेंटा क्लॉज ने क्रिसमस पे बच्चों को क्या दिए, गिफ्ट दिए. ठीक है, तो इस तरह से आप इनको फिल करेंगे सही ऑब्जेक्ट फिल करके. So I hope children you really enjoy the chapter and you learn many more new things from the chapter. Now do practice at home.